Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of state variable analysis. So start करते हैं. First of all, what is state variable analysis? So जनरली जो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है वो बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है. यूज़फुल क्यों है? क्योंकि किसी भी लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वेरिएंट सिस्टम, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम, इन सबको आसानी से डिज़ाइन कर सकती है, एनालाइज कर सकती है विद ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशन. मीन्स स्टेट वेरिएबल एनालिसिस इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक to analysis and design linear system, non-linear system, time variant, time invariant, seesaw and MIMO system with zero or non-zero initial condition. Seesaw means single input, single output, and MIMO means multiple input, multiple output. बेसिकली ये जो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस टेक्निक है इसे मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी भी कहा जाता है, जहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन टेक्निक इज कॉल्ड कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. मीन्स सिस्टम की इंटरनल स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी टेक्निक है जो किसी भी सिस्टम को ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशन के साथ एनालाइज एंड डिज़ाइन कर सकती है. आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टेट स्पेस टेक्निक. So generally this technique has the following advantage, that is this approach can be applied for linear or non-linear, time variant और time invariant system, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि लीनियर सिस्टम के साथ भी काम करता है, नॉन लीनियर के साथ भी करता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम के साथ भी करता है एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के साथ भी करता है. अब बात आती है कि और क्या क्या एडवांटेज हैं इसके. सो जनरली जहाँ भी किसी सिस्टम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वहाँ ये आसानी से अप्लाई होकर आउटपुट ऑब्टेन कर देते हैं. जनरली ये टाइम डोमेन अप्रोच के लिए काम में ली जाती है एंड इट इज़ suitable for digital computer computation because of its time domain approach. And the nth order differential equation can be expressed as an equation of first order whose solutions are easier. So we can say that the approach of state space technique can be applied to linear or non-linear, time variant or time invariant system, and it is easier to apply where the Laplace transform cannot be applied, and it is generally represent the differential equation of nth order easily, and it is a time domain approach, and this method is suitable for digital computer computation. So these are the basic advantages of state space technique. आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेक्टर एंड स्टेट स्पेस के बारे में. सो सबसे पहले स्टेट. सो द स्टेट ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम इज़ अ मिनिमल सेट ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट इज़ नोन एज स्टेट. And the knowledge of these variable at t is equivalent to t0
together with input t is greater than equivalence to t0 completely determine the behavior of this system for any time. आपको सिर्फ ये रखना है कि मिनिमम सेट्स का जो वेरिएबल होता है दैट इज़ नोन एज स्टेट. ठीक है. सेकंड है स्टेट वेरिएबल. सो द स्टेट वेरिएबल ऑफ अ डायनामिक सिस्टम्स are the minimum set of variable which determine the dynamics of a linear system. जनरली इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x1 of t, x2 of t, xn of t means similarly x1 of t, x2 of t, x3 of t and so on. So जनरली टाइम डोमेन अप्रोच के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए t से यहाँ रिप्रेजेंट, and these are the representation of state variables. आगे बात करते हैं स्टेट वेक्टर्स की. सो जनरली जैसे कि x ऑफ t दिया हुआ है, सो दिस इज x1, x2, x3 एंड सो these are the state vectors. So here these are the state vectors. So we can say that the n set of state variable used for describing the dynamic equation of a linear system can be considered the n components of the state vector as x of t. So in this the state vector x of t is equivalent to x1 comma x2 dot 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 xn, and the x1 x2 xn are the state variables. एंड जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, देन स्टेट वेक्टर होगा हमारे पास x ऑफ t. मीन्स ये फुल जो है ये हमारा स्टेट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. अब बात आती है स्टेट स्पेस की. सो जनरली 3 स्टेट वेरिएबल्स का ये जो स्पेस बनाया हुआ दैट इज़ अ स्टेट स्पेस. सो बेसिकली वी कैन से दैट द स्टेट स्पेस इज द n डायमेंशनल स्पेस whose coordinate axis consists of x1 axis, x2 axis and so on, and any state can be uniquely represented by a point in state space. So this is the representation of state space. आगे बात करने से पहले मैं कुछ स्टेट मॉडल्स के बारे में बताना चाहूँगी. सो स्टेट मॉडल देखिए कैसा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंट्रोल सिस्टम लिया, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम. इस कंट्रोल सिस्टम के n वेरिएबल्स इनपुट दे दिए मैंने, डॉट 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 n, यानी कि एक इनपुट दे दिया u1, एक दे दिया u2 एंड लास्ट इज un, डॉट 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 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आउटपुट y1, y2 एंड सो ऑन yp से रिप्रेजेंट कर दिया. सो जनरली इसको मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया. यहाँ पर कुछ हमें स्टेट वेरिएबल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे. सो दैट इज़ x1, x2 एंड सो ऑन, यानी कि xn. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये तो स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो ये पॉइंट्स हैं वो इनपुट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो ये है वो आउटपुट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो देखिए अब क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. तो देखो u ऑफ t यानी कि स्टेट वेक्टर u ऑफ t इज इक्वलेंस टू होगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट में करते हैं, u1t, u2t, इनपुट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनपुट वेक्टर्स को, एंड un t. सिमिलरली फॉर स्टेट वेरिएबल्स, तो स्टेट वेरिएबल्स को भी स्टेट उसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँगी. तो x ऑफ t इज इक्वलेंस टू x1t, x2t एंड सो ऑन, यानी कि xnt. ये हो गया स्टेट वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. अब बात आती है थर्ड, हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स था, दैट इज़ y ऑफ t इज इक्वलेंस टू y1t, y2t एंड सो ऑन ynT. ठीक है. तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म.
मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था, मीन्स ये कंट्रोल सिस्टम है जैसे, और यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स, ये स्टेट वेरिएबल्स एंड दीज आर द आउटपुट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक स्टेट मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है किसी भी स्टेट मॉडल का, जहाँ इनपुट्स भी शो हो रहे हैं, आउटपुट भी शो हो रहे हैं और स्टेट वेरिएबल्स भी शो हो रहे हैं विद द कंट्रोल सिस्टम। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट मॉडल। आगे बात करते हैं कि ये स्टेट इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेट मॉडल के थ्रू। तो पहले मैं वो बता देती हूँ। तो जो स्टेट इक्वेशन होती है किसी भी स्टेट मॉडल की, जनरली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की होती है। सो जनरली होती है एक्स डॉट, ठीक है, टी इज़ इक्विवेलेंट टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू टी। ये एक स्टेट इक्वेशन है। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एक्स डॉट है ये स्टेट वेक्टर को शो कर रहा है, यू है वो हमारे पास इनपुट वेक्टर को शो कर रहा है, ए और बी मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं किसी भी n इंटू एम की, एंड एक्स ऑफ टी यहाँ पर मीन्स जनरली एक्स हमारे पास क्या है, वही स्टेट वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। सो जनरली दिस इज़ द स्टेट इक्वेशन। अभी ये स्टेट इक्वेशन इनपुट फॉर्म में है, अगर मुझे वाई आउटपुट फॉर्म में चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ टी इज़ इक्वलेंस टू सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू टी। फिर से बोल रही हूँ, वाई यहाँ पर आउटपुट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी मैट्रिक्स पी इंटू एन की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी हमारे पास पी इंटू एम की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू हमारे पास इनपुट है एंड एक्स हमारे पास स्टेट वेक्टर्स को शो करने का काम कर रहा है। सो दिस इज़ द आउटपुट इक्वेशन। नाउ हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। सो जनरली जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशंस होते हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, वो बेसिकली मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम जो ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू ऑब्टेन करेंगे, तो वो जो पहली टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ डैट इज़ अ डायरेक्ट डीकम्पोजिशन टेक्निक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस इज़ इक्वलेंस टू 1 अपॉन एस रेस टू पावर एन प्लस a1 एस रेस टू पावर एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि ए एन एस रेस टू पावर 0। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिखाई दे तो उसको हम डायरेक्ट डिकम्पोजिशन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो करते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रांसफ़र फंक्शन इन स्टेट मॉडल, एंड क्वेश्चन दिया हुआ है वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस इज़ इक्वलेंस टू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले तो देखो इसका हायर ऑर्डर कितना है, 3, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो 3 है ना, तो स्टेप फर्स्ट कैसे करेंगे, इसमें 3 ही तो हम समिंग पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, और 3 ही इंटीग्रेटर लगा देंगे, लगा दिया क्योंकि थर्ड ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन है। सो डेट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, 3 ही तो समिंग पॉइंट लगाएंगे और 3 ही इंटीग्रेटर। ये क्रॉस ब्रैकेट, वो सर्किल में जो क्रॉस है जनरली ये रिप्रेजेंट करते हैं समिंग पॉइंट को, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेटर को। फिर से ध्यान रखना, जितने ऑर्डर का हमारा इक्वेशन होगा उस ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसको पुट करेंगे। अब उसके बाद इक्वेशन देखो, हमारी इक्वेशन थी 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6। अब देखो ध्यान से, पहले तो मैं रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। पहला ये दिया है u इनपुट में और आउटपुट में दे दिया y। अब पहले देखना, सबसे पहले 6 प्लस है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको फीडबैक में शो कर रहे होंगे तो माइनस लेके करेंगे। 6 के साथ कोई भी s का टर्म नहीं है तो स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे, -6 लिखा एंड फीडबैक कर दिया। दूसरा है 11s, यानी कि एक s है तो एक इंटीग्रेटर को छोड़ेंगे, प्लस है तो माइनस का साइन लगाएंगे एंड ये एरो लगा के सॉल्व। थर्ड है 6s स्क्वायर, 6s स्क्वायर इनकी 2 इंटीग्रेटर को छोड़ेंगे, ये हुआ माइनस का 6 एंड ये। फिर वो लास्ट है हमारे पास s क्यूब, तो हमारे पास ये सारे के सारा डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है।
ये तो हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अब वेरिएबल्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पहला इंटीग्रेटर है उसका हायर ऑर्डर मतलब जनरली हमारे पास 3 है, तो इसको बोलेंगे x3। दूसरे को बोलेंगे x2 डॉट, उस x2 डॉट की वैल्यू कितनी होगी x3 जो पिछली वाली है। फिर तीसरे इंटीग्रेटर को बोलेंगे x1 डॉट, उस x12 डॉट की वैल्यू क्या होगी x2, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास y है, उसकी वैल्यू क्या होगी x1। फिर से ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो y बराबर x1 है, फिर x1 डॉट लगाना है तो वो होगा x2 के बराबर, फिर x2 डॉट लगाना है वो होगा x3 के बराबर, और फिर x3 डॉट लिखना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन करना है हमको। आगे बात करते हैं कि अब हमारे पास जो आउटपुट है ईच इंटीग्रेटर का वो स्टेट वेरिएबल के थ्रू डिज़ाइन मतलब उसको डेजिग्नेट करेंगे। सो जनरली अपन रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी x1 डॉट, क्योंकि x1 डॉट में हमारे पास सिर्फ एक x1 डॉट इज इक्वल्स टू, अगर डायग्राम में देखें हम पीछे तो देखो x1 डॉट इज इक्वल्स टू x2 था, तो हम लोग इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0u, क्योंकि सिर्फ x2 की वैल्यू हमें शो हो रही थी डायग्राम में। फिर x2 डॉट बराबर था x3, तो सिर्फ x3 को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी को 0 के मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। फिर x3 डॉट था वो हमारे पास जनरली पूरी इक्वेशन को शो कर रहा है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन थी पूरा उसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 6x1, क्योंकि पहली टर्म माइनस का 6, दूसरी माइनस का 11x2, x2 के एक इंटीग्रेटर के बाद आ रही है, तीसरी माइनस का 6x3 क्योंकि थर्ड, एंड प्लस u जो कि इनपुट में शो हो रहा है। सो दिस इज़ द x3 डॉट, सो दिस इज़ द इक्वेशन। एंड आउटपुट इक्वेशन y बराबर हमारे पास क्या था x1 था डायग्राम में, तो सिर्फ x1 को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। अब इनको कुछ नहीं करना, हमें इन इक्वेशंस को स्टेट मॉडल के थ्रू मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो x1 x2 x3 तीन, तो x1 x2 x3 डॉट लगाए हुए हैं, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, 0 1 0 0 1 0, दूसरे में 0 0 1 0 0 1, तीसरे में -6 माइनस का 11 और माइनस का 6, x1 x2 x3 के फॉर्मेट में था, ठीक है। अब u किस किस में है, सिर्फ x1 डॉट में है 0 है, x2 डॉट में 0 है, x3 में 1 है क्योंकि u के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 0 0 1 u। तो ये इसका स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन होगी, आउटपुट में सिर्फ y बराबर आ रहा था हमारे पास x1, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल्स टू 1 0 0 x1 x2 x3 इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो दिस इज द डायरेक्ट डीकम्पोजिशन टेक्निक। सेकंड है कास्केड डीकम्पोजिशन। कास्केड के नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम लोग सीरीज़ वाइज किसी चीज़ को कनेक्ट करें, ठीक है, एक के बाद एक कनेक्ट हो, यानी कास्केडेड फॉर्म में जब कोई सिस्टम कनेक्ट होगा तो जनरली वो कास्केडेड डीकम्पोजिशन के फॉर्मेट में होगा। ऐसे जो कास्केड डीकम्पोजिशन की जो टेक्निक होती है जनरली उसमें जो फॉर्म होती है सिस्टम की वो इस तरीके से होती है, y(s) बाई us इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन s प्लस a डॉट 1 अपॉन s प्लस b डॉट 1 अपॉन s प्लस c एंड सो ऑन। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द स्टेट मॉडल ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन s प्लस 1, 1 अपॉन s प्लस 2, 1 अपॉन s प्लस 3। तो ये फॉर्मेट में है कास्केडेड के। सो हम देखो इसका पहले क्या करेंगे, कितना है 1 2 3, 3 टर्म्स हैं जिनको 3 टर्म्स को कास्केडेड करना है। तो पहला एक इंटीग्रेटर एक समिंग, एक इंटीग्रेटर एक समिंग, एक इंटीग्रेटर एक समिंग, यानी कि 3 3 हो गए, लेकिन इस फॉर्मेट में लगाना है। फिर देखो इसमें 3 है तो माइनस का 3 फीडबैक हो गया, इसमें 2 है तो माइनस का 2 फीडबैक हो गया, इसमें 1 है तो माइनस का 1 फीडबैक हो गया। ये तो कर ही दोगे। फिर इसके बाद ये x, अब रिप्रेजेंटेशन y बराबर x1 होता है, u इनपुट में डालना है। मैंने बताया था x1 है तो यहाँ आगे वाली टर्म क्या होगी x1 डॉट, फिर यहाँ x2 लिखना है तो आगे वाली टर्म क्या होगी x2 डॉट, फिर x3 है तो आगे वाली टर्म क्या होगी x3 डॉट। इनके थ्रू हम लोग इंटीग्रेटेड से स्टेट इंटीग्रेटर के जो आउटपुट है उनको स्टेट वेरिएबल के थ्रू डेजिग्नेट करेंगे। तो x1 डॉट क्या होगा, पहला देखो x1 डॉट
सो माइनस के 3x1, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक x2 आ रहा है, तो x2 प्लस 0 x3 की टर्म नहीं है और u की टर्म 0 u। x2 डॉट में देखो माइनस का 2x2, ठीक है, प्लस x3 आ रहा है, तो x3 और बाकी सारी टर्म 0। उसके बाद तीसरा x3 डॉट देखो माइनस का x3 u आ रहा है प्लस u एंड बाकी की टर्म 0। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। अब इन इक्वेशंस के थ्रू हमें क्या करना है, स्टेट मॉडल डिज़ाइन करना है। तो वही x1 x2 x3 ये हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब ये देखो माइनस का 3, इसमें x1 की टर्म 0 है तो 0, एंड ये इसमें भी x1 की टर्म क्या है 0 है तो 0। फिर x2 माइनस का 2, इसमें x2 की टर्म 0 है। फिर उसके बाद में x3 की टर्म ऊपर वाले में 0 है, इसमें 1 है, थर्ड में -1 है। ये x1 x2 x3 यू की देखो फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 1, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड जो आउटपुट इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, y बराबर x1 है तो सिर्फ x1 की टर्म रिप्रेजेंट होगी, बाकी सब 0, तो 1 0 0 x1 x2 x3। सो दिस इज़ द स्टेट मॉडल ऑफ कास्केडेड डीकम्पोजिशन। आगे और भी मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।